Hello. I'll start in 5 minutes. Let others also join. Hello, Rakesh Sharma. Yes, sir. I'll start in 2 to 3 minutes. Let others also join. Okay, sir. Hello, Priyanka Das.
Give me 2 minutes, I'll come. Okay, let me start. We can good to start. We are good to start. Hello, Priyanka Das, are you there? Yes, sir. Yesterday we have seen, I mean in the last class we have seen AS1, yes or no? Rakesh Sharma? Yes, sir. Today in the first 1 hour I'll take this AS12 and then we will see partnership accounting. Okay? AS12. Come to page number 606. Page number 606. Accounting for government grants. In the last class we have seen AS, what is AS, what is Ind AS. We have total 6 AS in syllabus. Settle down, take your time, settle down. इधर कनेक्शन चले गया. शेशी, कनेक्शन लॉस्ट, योर इंटरनेट कनेक्शन बोल के आ रहा है. अच्छा. In the last class we have started module 9. Okay, I have given the introduction of this part. What is AS, how AS is formulated, what is this Ind AS. Ind AS is nothing but IFRS version of our RAS. IFRS version. IFRS is nothing but International Financial Reporting Standards. This AS part is limited only to India. Okay, accounting standards. But to make our Indian entities to compete with foreign entities, we have formulated this Ind AS. Ind AS is nothing but IFRS version. IFRS in the sense International Financial Reporting Standards. So every country can follow these IFRS standards. So either they will directly adopt IFRS in their country or they will converge. Converge in the sense they will modify the standards and create their own version. This is India's version of AS, Ind AS. Okay, Ind AS, I mean this is just for knowledge sake, because you don't have this Ind AS in your syllabus. You have total 6 AS in your syllabus, out of which AS1 we have discussed in the last class already. Okay, today I am starting AS12. AS12, page number 606. As I already mentioned, I'll take one standard and partnership accounting simultaneously, because this accounting standards part bit theoretical.
Okay. Page number 606, AS12. AS1, the earlier AS. This is the introduction. This is the starting point. This is the introduction part. These 2 pages. Okay, you can just see what is this convergence. All this. This is the introduction part. This is the AS1. This is very simple theoretical standard. This part is theoretical, bit theoretical. Okay. AS10 नहीं किया था, AS1 किया था, उसके बाद AS12 कर रहा है. पार्टनरशिप अकाउंटिंग शुरू नहीं किया, आज शुरू करेंगे. Okay, that is a small chapter AS1, so that's why I started it simultaneously. हाँ, ठीक है. Okay, first one, what is this standard about? This standard is mainly about accounting for government grants. What is this standard about? Accounting for government grants. So what is this government grants? Example, suppose in the northeastern area the government wants to develop a particular area. So what it will do, it will launch a new scheme or subsidy sort of thing. Okay, to promote that backward area, government will give some subsidy or grant or incentive or duty drawback, whatever it may be. Basically what happens in that area, example, if I go and set up a factory, it will generate new employment opportunities, logistics will be developed, yes or no? Connectivity will be developed. So basically to promote that area, government is giving some grants. So this standard basically deals how to account for such grants. Grants can be in these 4 forms. Note down karo. Grants can be in these 4 forms. Grants, subsidy, incentives, duty drawbacks. First, government grants can be in cash or kind. In cash, monetary. In kind, example, suppose to develop any area in Arunachal Pradesh. In Arunachal Pradesh, the government is giving 5 acres or say some 100 acres of land to set up the factory. Yes, it will give 100 acres of land for setting up the factory. That is in kind. This is in cash. This is monetary terms. This is non-monetary terms. Okay. ठीक है. अभी गवर्नमेंट ग्रांट्स कब रिकॉग्नाइज करना है बुक्स में. इधर देखो रिकॉग्निशन पार्ट में ऊपर जो डेफिनेशन है वो एक बार देख लीजिए. वो तो यही होगा जो डेफिनेशन मैंने इधर दिया था स्क्रीन में. रिकॉग्निशन, गवर्नमेंट ग्रांट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड अंटिल देयर इज रीजनेबल एश्योरेंस दैट द एंटिटी विल कंप्लाई विद द कंडीशंस अटैच्ड टू देम. एग्जाम्पल, वो जो 100 एकर्स का लैंड दे रहा है अरुणाचल में फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, बोला है फैक्ट्री सेटअप करना है, मिनिमम 5 साल उधर बिजनेस करना है. ये दीज आर द कंडीशंस सेटअप बाय द गवर्नमेंट. सो उसको ग्रांट कब, इनडायरेक्टली वो ग्रांट कब अर्न करेगा, बिजनेस सेटअप करना पड़ेगा, फैक्ट्री सेटअप करना है, बिजनेस मिनिमम 5 साल करना है, तभी वो ग्रांट को इनकम जैसे रिकॉग्नाइज कर सकता है. सर पहले ग्रांट दे देगा क्या? हाँ पहले दे देगा,
लैंड तो पहले ही दे देगा, तो लैंड बुक्स में दिखा दो एज एन ग्रांट, एज एन reserve, I mean income, lump sum income. You should not transfer it to P&L because you did not earn the grant until 5 years are completed. Understanding? So you will take it, entry क्या होगा, बैंक अकाउंट नहीं, क्योंकि हमको लैंड आ रहा है ना, है कि नहीं, तो लैंड अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट. ठीक है, you can take it as a deferred income. This is a deferred income. Deferred income in the sense you will credit this amount first in the liability side. Okay, you should not recognize it as an income directly in the P&L. Okay, say for example this land value, I mean the 100 crores, 100 acres land value is some 100 crores. ठीक है, 100 crores. ठीक है, अभी ये 100 करोड़ 5 साल रहना पड़ेगा, यस और नो. तो 1 साल का इनकम इनडायरेक्टली हम मान सकते हैं 20 करोड़. 1 साल हो गया, इधर से 100 करोड़ से 20 करोड़ P&L को बेच सकता है, तब 80 करोड़ हो जाएगा लैंड. इधर तो 100 ही रहेगा क्योंकि ये तो एसेट है, समझ गए. हाँ, लेकिन इस केस में तो 80 हो जाएगा. फिर नेक्स्ट ईयर फिर 20 60 बन जाएगा, फिर 20 40 ऐसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा लास्ट में 5 साल में. लेकिन अगर सोच लीजिए बीच में ही इसको डिसकंटिन्यू करने का मन है, मतलब फैक्ट्री प्रॉफिट ओरिएंटेड, मतलब प्रॉफिट नहीं आ रहा है, अरुणाचल में फैक्ट्री सेटअप किया लेकिन डिसकंटिन्यू करने का सोच रहा है जो बंदा अभी गया है, ठीक है, तब रिकग्नाइज नहीं करना है पूरा 100 करोड़. हाँ, मतलब पूरा 100 करोड़ लाइबिलिटी जैसा ही दिखाना है, इनकम में नहीं लेना पड़ेगा. सर कैसे पता चलेगा ये? दैट्स व्हाई दे आर टोल्ड द एंटरप्राइज विल कंप्लाई द कंडीशंस अटैच्ड टू देम. अगर उसको पता है एंटिटी कंप्लाई होगा, एंटरप्राइज कंप्लाई होगा, तभी रिकग्नाइज करना है, एंड ग्रांट विल बी रिसीव्ड. समझ गया? हाँ, mere receipt of a grant is not necessarily conclusive evidence that conditions attaching to the grant have been or will be fulfilled. हमको लैंड दे दिया है पहले ही, इसका मतलब नहीं है ये हमारा इनकम बन जाएगा. पहले कंडीशंस तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा 5 साल का, है कि नहीं. गवर्नमेंट तो ऐसा सीधा नहीं देगा ना, बहुत सारा कंडीशंस रहता है, तो इसलिए इसमें रिकग्निशन का कब रिकग्नाइज करना है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. देयर शुड बी दैट एंटिटी, देयर शुड बी रीजनेबल एश्योरेंस दैट एंटरप्राइज विल कंप्लाई द कंडीशंस. सेकेंड वन, दैट ग्रांट विल बी रिसीव्ड. ये दोनों होगा तभी. सर दूसरा पॉइंट में क्या है, इतना मतलब ग्रांट विल बी रिसीव्ड. एग्जाम्पल जो पुराना गवर्नमेंट है वो दिया मुझे ग्रांट, ठीक है, बोला है देगा बोल के, ये जाके सेटअप किया है, तो बाद में गवर्नमेंट चेंज हो गया है, देगा कि नहीं देगा पता नहीं ना. जो नया गवर्नमेंट आएगा देगा कि नहीं देगा पता नहीं, तो फिर तभी भी नहीं रिकग्नाइज करना है. समझ गए? तो 2 पॉइंट के एंगल से देखना पड़ेगा. अंडरस्टूड? नेक्स्ट, methods of accounting for government grants. Capital approach, second one is income approach. Okay. First one is capital approach, second one is income approach. What do you mean by capital approach? I'll tell you. Here the government is giving you the grant, you have not done anything but you are still receiving the grant. In the second case you are earning the grant. Example, second case is that you should set up a factory and run it for 1 year, I'll give you the grant.
in this case. I should earn the grant. Here, before setting up the factory itself, government is giving some grants. Yes, say for example in Arunachal Pradesh, he said, I have to make this Arunachal Pradesh as a northeastern hub. Government has this vision. So what it has done, it has given the notification to that whoever is startup companies, whatever the startup companies, they are coming forward to make this possible, then we are going to give a grant of 5 crore rupees. Yes or no? Just if they are ready, then they will get the grant. No conditions. Yes or no? No conditions. Here, this is capital approach. Here, the grant should be earned. You set up the factory, do business work for 1 year, then you earn the grant. Understanding? Understanding? Here the government is giving for free. Government is giving grant for free. Understood? Here entity should earn it. समझ गया? Here entity should earn the grant. Understood? You can say this as gratuitous, this is non-gratuitous. Gratuitous in the sense for free ना, non-gratuitous. ठीक है? इस केस में एंट्री क्या होगा? एंट्री देना है, से फॉर एग्जाम्पल कैश और बैंक और एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. कैपिटल रिजर्व क्या था? इनडायरेक्टली रिजर्व ऑन सरप्लस में जाएगा, है कि नहीं? कैपिटल रिजर्व क्या था? रिजर्व है, एक P&L जैसा रिजर्व है. प्रॉफिट एंड लॉस, जो प्रॉफिट अर्न करेगा वो तो रिजर्व है, मतलब वो तो रिजर्व में जाएगा. जनरल रिजर्व रहता है, कैपिटल रिजर्व रहता है, ये सब रिजर्व्स है. रिजर्व्स इज नथिंग बट अमाउंट अवेलेबल इन द बिजनेस विच इज नॉट स्पेंट, विच इज अवेलेबल इन द बिजनेस फॉर फ्यूचर यूज, है कि नहीं? तो ये क्या बन जाएगा? कैपिटल रिजर्व में जाएगा, क्योंकि दिस इज नॉन ग्रेटिट्यूअस. यू हैव नॉट अर्नड इट, यू हैव गॉट इट फॉर फ्री. यस, सिमिलर टू कैपिटल. कैपिटल कैसे है? गवर्नमेंट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग समथिंग, सो कीप इट इन द रिजर्व्स. Understood? Keep it in the reserves. This is called reserves. So this goes to capital reserve. Understood? Here income, here entry क्या होगा? Cash account debit, bank account debit, asset account debit to एक गवर्नमेंट ग्रांट होगा और P&L होगा. एक गवर्नमेंट ग्रांट अल्टीमेटली P&L अकाउंट में जाएगा. एसेट अगर देगा तो तब ये नहीं होगा, एसेट निकाल दो. एसेट होगा तो अलग एंट्री होगा. एसेट होगा तो क्या होगा? एसेट अगर दिया था, मतलब कुछ एसेट दिया है, तब वो कैपिटल बन जाएगा. इनडायरेक्टली यही होगा, लेकिन एसेट साइड आएगा ना, वो बैलेंस शीट आइटम हो जाएगा. ये P&L आइटम नहीं होगा, क्योंकि ये तो इनकम अप्रोच है, ये तो इनकम में जाना है. इस केस में एक कैपिटल रिजर्व में ये एसेट इधर आएगा, इधर नहीं आएगा, ये तो गवर्नमेंट ग्रांट इसमें जाएगा. ठीक है? अभी इसको एलॉबरेटली एक्सप्लेन किया था पेज नंबर 607, प्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट
ग्रांट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। अभी क्या है, कैपिटल अप्रोच मानते हैं, नीचे इनकम अप्रोच मानते हैं, ठीक है। अभी कैपिटल अप्रोच रिलेटिंग टू डिप्रिशिएबल एसेट्स, नॉन डिप्रिशिएबल एसेट्स, promoters contribution, income approach, this is relating to revenue, ठीक है। ये वाला आपका क्वेश्चन में दिया फर्स्ट मेथड है, ये वाला सेकंड मेथड है। इसके ऊपर 2 मेथड्स है, फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड, इसमें 2 है, ठीक है। इसमें 2 है, इसमें नॉन डिप्रिशिएबल अलग है, ठीक है। अभी थर्ड ये है, फोर्थ ये है। ये तो सिंपल है, इस केस में पी एंड एल अकाउंट में जाएगा, क्रेडिट टू पी एंड एल अकाउंट, सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल। सेकेंड वन कैपिटल कंट्रीब्यूशन, एग्जाम्पल मैंने जो बताया था पहले, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। प्रमोटर किसको बोलते हैं, जो कंपनी स्टार्टिंग में एस्टैब्लिश होता है तो इनिशियल कैपिटल कौन देता है उसको प्रमोटर बोलते हैं, हमने कंपनीज एक्ट में देखा होगा। तो ये प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन मतलब इनडायरेक्टली गवर्नमेंट इज कंट्रीब्यूटिंग इन द फॉर्म ऑफ प्रमोटर। एग्जाम्पल मैंने जो बोला है, अरुणाचल प्रदेश में जो भी मतलब फैक्ट्री एस्टैब्लिश करेगा 5 करोड़ दे देगा, वो प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन बन जाएगा। इस केस में क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये तो हमने ऑलरेडी देखा है ना कैपिटल अप्रोच में। कैपिटल रिजर्व इज नथिंग बट शेयर होल्डर फंड्स, क्लियर। इधर क्या जाएगा, मैं एग्जाम्पल इधर भी एंट्री ले रहा हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट, ब्रैकेट में गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है। टू गवर्नमेंट ग्रांट भी लिख सकते हैं या सीधा टू पी एंड एल लिख लो, इधर तो एंट्री नहीं दिया लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एंट्री बता रहा हूँ, ठीक है। हियर ऑल्सो सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, because this is not relating to depreciable asset. ठीक है, इस केस में क्या होगा, फर्स्ट मेथड देखो, फर्स्ट मेथड में क्या बोल रहा है, डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस एसेट वैल्यू, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। इस केस में सर कैसे होगा, एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। मैं फैक्ट्री सेटअप करने के लिए मशीनरी खरीद रहा हूँ, ठीक है। वो तो मेन फैक्ट्री में तो मेन एसेट तो मशीनरी होगा, वो मशीनरी है, बहुत कॉस्ट है फैक्ट्री में, तो मेन सेटअप मशीनरी होगा, ठीक है। मशीनरी का एग्जाम्पल सोच लो, 5 करोड़ है मशीनरी वैल्यू है। अभी इस केस में एग्जाम्पल गवर्नमेंट ग्रांट दे रहा है, लैंड नहीं दे रहा है आपको, स्टार्टिंग में 5 करोड़ दे रहा है, वो नहीं दे रहा है आपको, क्या कर रहा है, मशीनरी खरीदने के लिए सब्सिडी दे रहा है।
क्या दे रहा है? मशीनरी खरीदने के लिए सब्सिडी दे रहा है। तो वो सब्सिडी क्या था? मशीन का 1 करोड़ दे रहा है। तो आपका नॉर्मली आप जब खरीदेगा क्या होगा? एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5 करोड़ है कि नहीं? बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, इसलिए एसेट आ रहा है बिजनेस में, एसेट वैल्यू बढ़ जाएगा। अभी मैं अगर ये सब्सिडी रिलेटिंग टू दैट पर्टिकुलर डिप्रिशिएबल एसेट, मशीनरी तो डिप्रिशिएबल है, तो अभी मैं क्या करूंगी इस केस में? बैंक जब ग्रांट आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, सो दैट मशीनरी अकाउंट 1 करोड़ लिखूंगा। समझ गए? तो इनडायरेक्टली मैं एसेट वैल्यू कम करके दिखा दूंगा। आपकी जेब से 4 करोड़ जा रहा है इनडायरेक्टली, है कि नहीं? तो इन दिस फर्स्ट मेथड व्हाट यू विल डू, you will this grant is shown as a deduction from the gross value of assets। उस फर्स्ट लाइन में देख लीजिए, फर्स्ट मेथड जो है, this grant is shown as a deduction from the gross value of assets। समझ गया? समझ गया? अभी ये जो 5 करोड़ है डिप्रिशिएट हो जाएगा, हर साल डिप्रिशिएट हो जाएगा। इनडायरेक्टली क्या है? ये 1 करोड़ भी इनडायरेक्टली हर साल P&L में ले रहा है, इनडायरेक्टली, है कि नहीं? अभी ये 5 करोड़ नॉर्मली हम 5 करोड़ को डिप्रिशिएट करता है, सोच लीजिए 5 साल है तो हम 1-1 करोड़ 1-1 करोड़ P&L में डिप्रिसिएशन 2 डिप्रिसिएशन बोल के लेते हैं, तब एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स इसका वैल्यू नील हो जाएगा। अभी हम क्या कर रहा है? 4 करोड़ को डिप्रिशिएट कर रहा है 5 साल में। इनडायरेक्टली वो जो 1 करोड़ इनकम है इनडायरेक्टली हम P&L क्रेडिट में ले रहे हैं ना, क्योंकि हम अकाउंट कर रहे हैं 4 करोड़ का। That is equivalent to indirect recognition of this 1 crore as income in every year, है कि नहीं? हाँ, that is the first method। second method में क्या होगा? नहीं 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 नहीं, वो ऐसा नहीं होगा। इनडायरेक्टली क्या था? हमारा बैंक बैलेंस 5 करोड़ कम हो गया, अभी 1 करोड़ आ गया, तो इनडायरेक्टली हमारा बैंक बैलेंस मतलब मेरे जेब से मैं 4 करोड़ ही कच्चा किया। समझ गया? रिजर्व जैसा नहीं रखा है मैंने, मेरा जेब से इनडायरेक्टली बिजनेस ने 4 करोड़ ही कच्चा किया। इसका एसेट वैल्यू है 5 करोड़, लेकिन ड्यू टू गवर्नमेंट ग्रांट मेरा एसेट वैल्यू बन गया 4 करोड़। समझ गया? समझ गया ना? हाँ, उसका अगर उसका एसेट वैल्यू देखेगा 5 करोड़ ही रहेगा, मार्केट में जाके इसे एसेट को बेचने के लिए कोशिश करेगा 5 करोड़ ही मिलेगा, लेकिन बुक्स में कम करके दिखा रहा है एसेट वैल्यू ड्यू टू गवर्नमेंट ग्रांट। समझ गए? हाँ, अभी जो सेकंड मेथड है इसमें क्या रिकॉग्नाइज करना है? एसेट शैल बी ट्रीटेड एज डिफर्ड इनकम। डिफर्ड इनकम ब्रैकेट में गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है? ये डिफर्ड इनकम क्या होगा? दिस इज ए लमसम अमाउंट 1 करोड़, ठीक है? एसेट वैल्यू रहेगा 5 करोड़, डिफर्ड इनकम रहेगा 1 करोड़। समझ गया? एसेट वैल्यू इज 5 करोड़, डिफर्ड इनकम इज 1 करोड़। तो ये एसेट वैल्यू 5 करोड़ का ही दिखेगा, डिप्रिसिएशन 5 करोड़ में होता रहेगा, ये 1 करोड़ दिखेगा। अगर 5 साल का एसेट है तो ये 5 ईयर्स तक इनकम में रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। समझ गया? तो 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स क्या होगा? 20 लैक्स, ठीक है? 20 लैक्स पर एनम ये इनकम में जाएगा, ये 1 करोड़ डिप्रिशिएट होता रहेगा। एक लमसम अकाउंट डिफर्ड इनकम बोल के क्रेडिट करना है, और उसका करस्पॉन्डिंग अमाउंट कंडीशंस जब भी सेटिस्फाई होगा P&L में इनकम जैसे ट्रीट करना है। ठीक है? हेलो नीलव,
Hello, sir. हाँ, today I have started AS 12, हाँ, page number 606. Okay, sir. This is the main chat which is given in page number 607. Make a note of it or try to take a photocopy. Later on, make a note of it. Yes, sir, I'm taking a picture of it. Sorry? हाँ, screenshot I'm खींचा है taking. क्या? Very good. Mhm. Okay. This is the capital approach. This is the income approach. While we do the sums, you will get the better clarity. Okay. अभी रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, रिफंड कैसे बेस करेगा? जो इनिशियल ट्रीटमेंट है उसके ऊपर रिफंड बेस होगा. सर कैसे है? इस केस में आपने एग्जाम्पल, इस रेवेन्यू ग्रांट है. रेवेन्यू ग्रांट मतलब सीधा P&L में बेच सकता है. ठीक है, दिस इज नॉट कैपिटल ग्रांट, रेवेन्यू ग्रांट है तो P&L में भेजेगा. तो जब रिफंड करना है तो क्या है? रिवर्स हो जाएगा. P&L अकाउंट को डेबिट करो, बैंक को क्रेडिट करो, रिफंड हो गया. इधर इस केस में रिफंड करना है, कैपिटल रिजर्व को डेबिट करो, बैंक को क्रेडिट करो. ठीक है, तो रिफंड इज बेस्ड अपॉन द इनिशियल अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ द ग्रांट. समझ गया? नीचे देखो, रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स. रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स इन द नेचर ऑफ प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन. You need to charge it to the capital, reduce from the capital reserve. If it is related to revenue, charge it to the P&L. Credit के जगह में debit होगा. When it is related to specific fixed asset, now you have to differentiate whether it is depreciable or non-depreciable. If it is depreciable, earlier asset value reduce किया था, जब refund करना है asset value दोबारा increase करो, इसका reverse entry होगा. एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक. समझ गया? इस केस में सेकंड मेथड में डिफर्ड इनकम अकाउंट डेबिट टू बैंक. ऑलरेडी डिफर्ड इनकम अकाउंट है ही नहीं. सोच लीजिए 2 साल में टोटल 1 करोड़ ना, तो 20 लाख करके मैंने ऑलरेडी P&L में 2 साल बेच दिया, तो कितना बचेगा? इधर 60 लाख बचेगा, है कि नहीं? जब रिफंड करना है 60 लाख डिफर्ड इनकम से ले लो, 40 लाख P&L से ले लो. क्योंकि डिफर्ड इनकम से ऑलरेडी हमने P&L में बेच दिया ना, 2 साल बेच दिया, 20 लाख P&L में बेच दिया, तो अभी P&L में पैसा है, P&L से रिवर्स करो. समझ गया? हाँ, इधर कैपिटल रिजर्व क्रेडिट होगा तो कैपिटल रिजर्व डेबिट करना है. तो रिफंड प्रोसेस इज बेस्ड ऑन इनिशियल अकाउंटिंग ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट. अंडरस्टूड? Sir, I'm not able to catch up. Which part are you teaching? Sorry? I'm not able to catch up with you, sir. Which part are you teaching right now? Which one? I mentioned page number 606. Page number 606. AS 12 accounting for government grants. Clear? Take a screenshot of this also. In the last class we have seen AS1, yes or no? Yes, sir. हाँ, after AS1 and now I am teaching AS12. Yes, sir, I'm taking a screenshot. हाँ, take a screenshot of this. This is the different types of grants you will receive. Example grant in the sense, example I'll give you an example. Suppose government wants to promote a particular area. Say for example Arunachal Pradesh, it has to promote Arunachal Pradesh. So government has offered a grant, so whoever is going to set up a factory in Arunachal Pradesh, I am going to give a grant of 5 crores. Yes? Yes, sir. हाँ, this is one example of grant. Subsidy in the sense, while purchasing any machinery in the factory, suppose the machinery cost is 5 crores, government is giving subsidy of 1 crore, you can purchase it for 4 crores. So that 1 crore is called grant here as per this accounting standard. Clear? Grant can be in cash or kind, in any mode. Okay, sir. Okay, take this screenshot and then take this screenshot also.
You have two methods of government grants. Take this screenshot. Capital approach, income approach. Done? Yes, sir, done. Then this is in, this is in, this is briefly, understanding briefly, this is in detailed. This chart depicts in detailed accounting of government grants. These are all the entries. Okay, we will do we have 2 to 3 problems, we will do that, then you will be clear with the concept. Read question number 9. Question number 9. From the central government कितना रुपीस रिसीव कर रहा है? 80 lakhs रिसीव कर रहा है. ओके, इन बैकवर्ड एरिया फैक्ट्री सेटअप करने के लिए डी लिमिटेड है, डी लिमिटेड. ठीक है, इसको 80 लाख रुपीस ग्रांट मिला है, सब्सिडी. ठीक है, सब्सिडी इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ ग्रांट. How do you treat the transaction in the financial statement of the company? Okay, in the question they did not mention any conditions, anything. So this is in the nature of promoter contribution. Sir, कैसे है? जो promoter मतलब कंपनी को इनिशियली जो जब फ्लोटिंग करता है तब इनिशियली कैपिटल देना पड़ेगा. Yes or no? वो कंपनी स्टार्ट होने के लिए. So this grant is also in the nature of this promoter's contribution. सेटिंग अप ए फैक्ट्री मतलब फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए ही कुछ दे रहा है, समझ. दिस इज ऑल सिमिलर टू प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन. ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन. तब क्या होगा एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. ये कैपिटल रिजर्व कहाँ जाएगा? रिजर्व्स ऑन सरप्लस में जाएगा. रिजर्व्स ऑन सरप्लस मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स ऑन सरप्लस दोनों को मिला के शेयर होल्डर फंड्स बोलते हैं, है कि नहीं? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स ऑन सरप्लस, ये दोनों को मिलने से शेयर होल्डर फंड्स बोलते हैं. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी रहेगा तब भी उसको भी ऐड करना पड़ेगा. प्रेफरेंस इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स ऑन सरप्लस, दिस इज कॉल्ड शेयर होल्डर फंड्स. अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल निकाल देगा तब इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स होगा, समझ गया? इसका मतलब है इक्विटी शेयर होल्डर्स को टोटल फ्यूचर में कितना जाएगा पैसा इनडायरेक्टली, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ द कंपनी, दे आर द ओनर्स, समझ गया? हाँ, तो इस केस में क्या होगा? व्हेन गवर्नमेंट ग्रांट्स आर इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन बिकॉज दे डिड नॉट अर्न इट. इस केस में डिलिमिटेड कुछ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया. मतलब एग्जाम्पल इसको दूसरा तरीका में हम देख लेंगे. गवर्नमेंट ग्रांट 80 लाख देगा जब फैक्ट्री सेटअप करके 1 साल बिजनेस करेगा, ठीक है? तब इस केस में हम क्या सोच सकते हैं? फैक्ट्री सेटअप किया है, 1 साल बिजनेस किया है, तो इनडायरेक्टली कंपनी ने अर्न किया इस ग्रांट को, समझ गया? जब अर्न करेगा तब ये प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन नहीं हो जाएगा, तब इनकम अप्रोच हो जाएगा. ये कैपिटल अप्रोच कैसे बन गया? बिकॉज कंपनी हैज डन नथिंग, इट हैज रिसीव्ड ग्रांट फॉर फ्री, सो दैट्स व्हाई इट इज इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन. अंडरस्टूड नीलव? Yes, sir. हाँ, so when government grants are in the nature of promoters contribution, they are given with reference to total investment in an undertaking or by way of contribution to its total capital outlay, and no repayment is ordinarily expected in case of such grants. These are credited to shareholder funds. ठीक है? So delimited should credit the amount of 80 lakhs to capital reserve and the same would get reflected in the balance sheet. समझ गया?
ये जो डिलिमिटेड फैक्ट्री सेटअप करने के लिए कैपिटल जितना इन्वेस्ट करना है उसमें एक पोर्शन 80 लाख मिल गया इसको, समझिए, सोच लीजिए टोटल कैपिटल होगा 2 करोड़, ये 80 लाख ऑलरेडी गवर्नमेंट ही दे दिया है, तो 1.2 करोड़ ये एडिशनली देने से हो जाएगा, है कि नहीं, बिजनेस सेटअप हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली 80 लाख क्या हो जाएगा, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, इसलिए उसको कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट करना है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, अंडरस्टूड ना? हाँ, सेकंड क्वेश्चन पढ़ो नीलो। So question 10. हाँ, क्वेश्चन नंबर 10। Big Box Limited, a startup purchased on April 1st, 2020, a machine worth 44 lakhs 85,000, in relation to which it received rupees 7 lakh 35,000 as grant from Government of India. हाँ, अभी इस केस में ये स्टार्टअप है बिग बॉक्स लिमिटेड, ठीक है, ये तो बिग बॉक्स लिमिटेड स्टार्टअप है। ये क्या खरीद रहा है, मशीन खरीद रहा है। मशीन का कॉस्ट कितना है? 44 lakh 85,000. 44 lakhs 85,000, वेरी गुड। अभी इसके रिलेटेड में इसको कितना ग्रांट आ रहा है? 7 lakh 35,000. ग्रांट कितना? 7 लाख 35,000. 35,000, ठीक है। हाँ, अभी देखो नेक्स्ट। The company decided to treat this grant as a capital receipt. हाँ, कैपिटल रिसीट, बिकॉज इट इज ऑब्वियसली रिलेटेड टू डिप्रिशिएबल एसेट। इस चार्ट में देखो, दिस चार्ट इज रिलेटिंग टू डिप्रिशिएबल एसेट, तो डिप्रिशिएबल एसेट होगा तो कंफर्म वो कैपिटल अप्रोच ही होगा, यस और नो? नेक्स्ट। It is estimated that the realizable value of the machine at the end of its useful life is a life of 4 years will be 15 lakh 36,000. हाँ, व्हाट इज दिस कॉल्ड? Realizable value of the machine. हाँ, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज स्क्रैप वैल्यू, Scrap value. यस और नो? डिप्रिसिएशन से के लिए हम ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ना, स्क्रैप वैल्यू, इफ यू रिमेंबर। sir. हाँ, this is called scrap value. Scrap value is nothing but the amount which you receive on sale of this asset at the end of its useful life. Understood? Yes, sir. मशीन का यूजफुल लाइफ कितना साल बोला है? 4 years. 4 years. इसका मतलब है ये मशीन 4 years यूज करने के बाद at the end of 4th year you can sell this machine for 15 lakhs 36,000. Sir, why you should consider this scrap value? Because you should depreciate only this machine cost minus scrap value, because that is only the depreciable amount. Rest, this 15 lakh 36,000 is not depreciable, because this you can realize after the sale of asset. Yes or no? Yes, sir. हाँ, so that's why next. During the financial year 2022 and 23, the grant became refundable as the startup company failed to comply with the necessary terms and conditions of the grant. इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में क्या हो रहा है? ग्रांट को रिफंड करना पड़ रहा है कि नहीं? बिकॉज वो टर्म्स एंड कंडीशंस मीट नहीं किया, तो ग्रांट को रिफंड करना है। तो रिफंड करना है तो पहले ओरिजिनल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या था वो हम देखना है, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा इस केस में? देखो, डिप्रिशिएबल एसेट के केस में फर्स्ट मेथड में हम क्या करते हैं? एसेट से रिड्यूस करते हैं। सोच लीजिए एसेट है 5 करोड़, हम जब ग्रांट आएगा हम एसेट का वैल्यू कम करके दिखाते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ ग्रांट रिसीव्ड। अभी इस केस में ग्रांट का वैल्यू कितना था? 7,35,000। तो मशीन से रिड्यूस करो, नेट अमाउंट कितना होगा देखो, $37,50,000 होगा, करेक्ट नीलो? यस और नो? Yes, sir. हाँ, इसका मैं एंट्री बताता हूँ क्या होगा। पहला है एसेट जब खरीदेगा तब एंट्री,
एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। टोटल एसेट का वैल्यू कितना था? 44,85,000। ठीक है, अभी जब ग्रांट आएगा तब हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट को रिड्यूस करेंगे। कितना है? 7,35,000। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड ना? नेट एसेट वैल्यू कितना होगा? एसेट इधर डेबिट है ज़्यादा, एसेट बेसिकली हैज डेबिट बैलेंस। इधर 44,85,000 है, इधर कम कर दिया जब ग्रांट रिसीव हुआ, तब क्या एसेट नेट वैल्यू कितना हो जाएगा? 37,50,000 हो जाएगा। डू यू एग्री विथ मी? Yes, sir. हाँ, अभी दिस माइनस दिस इज द डिप्रिशिएबल वैल्यू। यस, this is the, you can say this is net book value after reducing the grant. This is the book value of asset, book value of asset. Now depreciation कैसे कैलकुलेट करेगा? book value of the asset minus scrap value divided by useful life, because you should not depreciate whole 37,50,000 because you can receive 15,36,000 at the end of 4 years. You can receive this amount at the end of 4 years after selling the machine. So you should depreciate only the difference amount. So the difference amount is called depreciable amount. What is this called? Depreciable amount कितना था? 37,50,000 माइनस 15,36,000 कितना है बोलो? 22,14,000. 22 lakhs 14,000. 14. 14. Okay. 22 lakhs 14,000. Now depreciation per annum. 22 lakhs 14,000 divided by 4 years. Tell me the 5 depreciation per annum. 5,53,500. 5 lakhs 53,500. 500. This is the depreciation amount. Okay, we are not yet jumped into the refund part. This is the accounting done in the year of receipt of grant. Yes. अभी नेट बुक वैल्यू कितना था एसेट का? 37,50,000. 37,50,000. कब परचेज किया था? 1st of April 2020. 2020. तो ये फाइनेंशियल ईयर 2021 हो जाएगा, 2021. ठीक है, 37,50,000 है। क्लियर ना? Yes, sir. इसका इस ईयर का डिप्रिसिएशन कितना होगा? 5,53,500. तो 1st April 2021 में कितना होगा WDV? WDV या बुक वैल्यू कितना होगा बोलो? दिस इज फाइनेंशियल ईयर 2021 डिप्रिसिएशन. WDV कितना होगा बोलो? कितना? 96,500. फाइनेंशियल ईयर 2021-22 इस साल का भी डिप्रिसिएशन बताओ कितना है? 5,53,500.
तो अभी इधर WDV बताओ कितना होगा? So 26,43,000. 26,43,000 है कि नहीं? दिस इज WDV ऑन 1/4/2022. क्लियर? अभी देखो, ड्यूरिंग द फिनेंशियल ईयर 2022-23, during this financial year grant became refundable, है कि नहीं? As the company did not satisfy the terms and conditions. So here the book value is 26,43,000. Earlier when you received the grant, what have you done? Bank account debit to asset account. Now when you are refunding the grant, you have to pass the reverse entry, asset account debit to bank account. Yes or no? So indirectly here the book value is this much. Here asset value gets increased due to refund. Yes or no? So you increase the asset value now. Tell me the grant amount. How much is the grant amount? 7,35,000 ना? हाँ, 7,35,000. बोलो ऐड करके बोलो कितना होगा? 33,78,000. 33,78,000. समझ गया? This is the revised WDV or book value on 1st of April 2022. 2022 ना, मतलब ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बोला है, मतलब फाइनेंशियल ईयर में एंटर हुआ, जस्ट खत्म नहीं हुआ है. ठीक है? अभी वो क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन दैट इज टू बी चार्ज टू P&L फॉर द ईयर 2023, 2024. कितना डिप्रिसिएशन जाएगा उतना बोल रहा है. अभी इधर तक तो ऑलरेडी 2 साल हो गया. यूजफुल लाइफ टोटल 4 इयर्स है, इधर 2 साल हो गया तो और 2 साल बचेगा. तो दिस इज द रिवाइज्ड बुक वैल्यू, है कि नहीं? हाँ, दिस इज द रिवाइज्ड बुक वैल्यू 33,78,000. रिवाइज्ड बुक वैल्यू ऑन 1st of April 2022 कितना था? 33,78,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू. स्क्रैप वैल्यू कितना है? 15,36,000. इधर डिप्रिशिएबल अमाउंट देखो, डिप्रिशिएबल अमाउंट बताओ मुझे. 18,42,000. 18,42,000. 42,000. Now this is 40, depreciable for, 42, sorry, 42,000. अच्छा 18,42,000. Yes, sir. 42,000. Now this 18,42,000 you need to depreciate for 2 more years because 2 year already खत्म हो गया. अभी this divided by 2 years करो. 18,42,000 divided by 2 कितना होगा? 9,21,000. हाँ, this is revised depreciation per annum 9,21,000 ना. Yes, sir. हाँ, revised depreciation per annum is 9,21,000. In financial year 2022-23, this is the depreciation amount. In financial year 2023-24 also, this is the depreciation amount. And then the book value becomes 15,76,000. You can sell this machine for this much value, and then your book value becomes 0 at the end of 4 years.
है कि नहीं? अभी तो ये WDV है ना, इसको ये 2 साल इतना अमाउंट निकाल दो, 18,42,000, जो बचेगा इतना ही बचेगा, तो 2 साल के बाद इसको इतना में बेच दो, 0 हो जाएगा. दिस इज द कॉन्सेप्ट. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड नीलव? एनी डाउट? No, sir. Clear. हाँ. पेज नंबर, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया था. एक और सम करेंगे. पेज नंबर 621 आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन है ना. पेज नंबर 621. क्वेश्चन नंबर 4 है. क्वेश्चन नंबर 4 इज रिलेटिंग टू AS12. बगल में लिख दो AS12 क्वेश्चन नंबर 4 के बगल में. नीलव, रीड द सम. Yes, sir. On 1st April 2021, AS Limited received government grant of 300 lakhs for acquisition of machinery costing 1500 lakhs. मशीन का कॉस्ट है 1500 लैक्स. ग्रांट या सब्सिडी? सब्सिडी 300 कितना दिया था? 300 lakhs. 300 lakhs. Next, the grant was credited to the cost of asset. Credited to the cost of asset is nothing but this one, bank account debit to asset account. Yes or no? Yes. Credited to the cost of asset is nothing but this. This is the treatment. So by this treatment you should understand this is capital approach relating to depreciable asset. Okay, indirectly you should reduce the grant amount from the machine, which comes to 1200. This is the book value, net book value of machine. Clear till now? Yes, sir. Next, The life of the machinery is 5 years. यूजफुल लाइफ कितना दिया था? 5 years. 5 years. Very good. Next, The machinery is depreciated at 20% on written down value basis. हाँ, दिस इज SLM नहीं है, ये WDV 20% है. डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन ऑन WDV बेसिस 20%. नेक्स्ट, The company had to refund the grant on May 20. रिफंड कब करना है? 4 May 20 into 4 लिखा हुआ है इसमें. मई 2024 बोल रहा है. रिफंड ऑन 1 May मई 2024. 2024. मतलब ग्रांट रिसीव कब हुआ, मुझे डेट बताओ. Grant received on the 1st April 2021. 1 अप्रैल 2021. रिफंड कब कर रहा है? 1st May 2024. कितने साल के बाद कर रहा है? So 3 years. 3 years कैसे होगा बोलो? थ्री ईयर्स कैसे होगा बोलो? 1/4/2021 है, ठीक है. 31 मार्च 2022 तक 1 साल होगा. दिस इज 1 ईयर. 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 है कि नहीं? ये 2 साल होगा. 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 ना, ये 3 साल. क्लियर? 3 साल 2 इयर्स. करेक्ट है. वेरी गुड, करेक्ट है. ये 3 साल हुआ है तो 2 मंथ्स है. 2 मंथ्स मतलब वो 2 मंथ्स 2 months मतलब को कैलकुलेट करना पड़ेगा. हाँ, ये 3 इयर्स के बाद रिफंड करना है इनडायरेक्टली. मतलब ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25 को रिफंड करना है.
इसका फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? 2024 25 ड्यूरिंग द ईयर रिफंड करना है कि नहीं? तो मतलब है इनडायरेक्टली 3 साल डिप्रिशिएट करना है। क्लियर? यस और नो? हाँ। अभी नेट ये तो बुक वैल्यू इतना है, यूजफुल लाइफ दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू दिया नहीं है, एक हेडेक निकल गया। अभी इधर से मुझे WDV एज ऑन 31 मार्च 2024 कितना है बता सकते हैं क्या नीलव? This is the net book value on the date of purchase after reducing the grant amount. अभी मुझे WDV चाहिए और बुक वैल्यू ऑन 1/4/2024 में मुझे WDV कितना होगा बताओ? हाँ 3 years में कितना होगा कैलकुलेट करो। Open your calculator, tell me the amount. नहीं WDV है 1200 है, -20%, 80% का वैल्यू बताओ कितना होगा? नीलव सर WDV आया था क्या? कितना आया था? 960 कैसे होगा? सर 20% हो गया आपका 240 240, 1200 से 240 माइनस करो 960 960। वेरी गुड। इसके बाद सेकंड ईयर का डिप्रिसिएशन है 20%, 960 से 20% माइनस करो। सो 768। यस वेरी गुड 768 है। इसके बाद 20% एक और साल का माइनस करो, क्योंकि 3 साल का डिप्रिसिएशन लेना है। 768 माइनस 20%, सो 614.4। वेरी गुड 614.40। दिस इज द बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल। समझ गए? 1 अप्रैल 2024 है। क्लियर? अभी 3 साल के बाद रिफंड हो रहा है कि नहीं? अगर इस साल का भी डिप्रिसिएशन ले लेगा तब नेक्स्ट साल में चले जाएंगे हम, लेकिन रिफंड करना है इसी साल में, तो इसलिए इस साल का 2 महीने का डिप्रिसिएशन इग्नोर करो। ठीक है? क्योंकि 2 महीने तो डिप्रिसिएशन तो ईयरली एक बार लेता है, वो भी एट द एंड ऑफ द ईयर लेता है डिप्रिसिएशन। तो 2 महीने के बाद हम प्रोपोर्शनली डिप्रिसिएशन लेने का जरूरत नहीं है। समझ गया? अभी क्या करना है? रिफंड करना है। तो रिफंड करना है तो जो ओरिजिनल ग्रांट अमाउंट है, इधर देखो 300, उसको ऐड बैक करना है, क्योंकि रिफंड करने के समय इसका रिवर्स एंट्री होगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दिस इज द रिफंड ऑफ ग्रांट एंट्री, एसेट टू बैंक। जब एसेट डेबिट हो गया इसका मतलब एसेट वैल्यू बढ़ जाएगा। एसेट का वैल्यू 614 ना, 614.40 प्लस 300 करो 914.40। दिस इज द रिवाइज्ड बुक वैल्यू आफ्टर रिफंड ऑफ ग्रांट। समझ गया? अभी इस साल का डिप्रिसिएशन फाइंड आउट करो, -20%। डिप्रिसिएशन कितना होगा देखो, 914.40 इंटू 20%, 182.88 डिप्रिसिएशन होगा। 914.4 माइनस 20%, 731.52 होगा। ठीक है?
This is the depreciation amount for financial year 2024-25. एक और साल रहेगा ना, 3 साल हुआ तो ये 4th ईयर है, अभी 5th ईयर का डिप्रिसिएशन कितना है देखो, 731.52 इंटू 20%. 585.21 हाँ, माइनस करो 216 आ रहा है सर. माइनस 20% कितना आ रहा है, 585.216. 585.216. दिस इज द बैलेंस WDV. ठीक है, ठीक है सर. हाँ. सर अगर रिफंड का डेट मतलब अगर सिर्फ अगर अक्टूबर ऐसा होता, अगर मई नहीं होके तो क्या करते? रिफंड का डेट बोल रहा है मतलब 6 मंथ्स के बाद. हाँ सर. प्रोपोर्शनेटली आप बोल रहे हैं उसमें प्रोपोर्शनेटली लेगा, ले सकता है, नोट लेके ले सकता है, लेकिन जनरली क्या था, ये डिप्रिसिएशन तो मंथ एंड में मतलब ईयर एंड में 31 मार्च को डिप्रिसिएशन रन होता है. डिप्रिसिएशन रन बोल के कॉन्सेप्ट है, मतलब सब एसेट्स का डिप्रिसिएशन रन ईयर एंड में होता है. तो इसलिए 1 साल का उसी टाइम पे कर सकते हैं. प्रोपोर्शनेटली अगर लेना है तो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. नोट लिख के आई हैव कंसिडर्ड प्रोपोर्शनेट डिप्रिसिएशन फॉर दिस 2 मंथ्स, यू कैन टेक. और इन दैट केस अक्टूबर में होगा तो 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन भी ले सकते हैं. 0.5 का लेके उसके बाद ऐड करो ग्रांट. दैट इज योर डाउट ना नीलव? यस सर. हाँ, 2 मंथ्स का प्रोपोर्शनेट लेके डिप्रिसिएशन कम करो, उसके बाद 300 ऐड करो ग्रांट. दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बट आई रिक्वेस्ट यू टू ड्रॉप ए नोट बिलो. Okay, you can take it in 2 ways, but in the book on, and I have assumed that depreciation is calculated only on the year end. So on that basis I did not consider here. Clear? Yes, So sir. this is all about AS 12. How do you treat बोला है, उधर में आंसर में दिया है रिवाइज्ड बुक वैल्यू सिर्फ, लेकिन मैंने पूरा सम कर दिया. रिवाइज्ड बुक वैल्यू इधर तक ही वो लोग आंसर में दिया, लेकिन मैंने नेक्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन क्या होगा, इस ईयर का भी डिप्रिसिएशन क्या होगा वो भी फाइंड आउट करके क्लोजिंग बुक वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर दिया. ठीक है. हाउ डू यू ट्रीट बोला है, तो हम पूरा 5 साल का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा एग्जाम में, समझ गए ना? हाँ, now we are jumping into partnership. आउट ऑफ टोटल 6 AS 2 AS मैंने कंप्लीट कर चुका है. क्या क्या AS है वो नीलव, क्या क्या AS है वो? AS 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज है कि नहीं? Yes, नेक्स्ट है AS 12, आज डिस्कस किया था. गवर्नमेंट ग्रांट्स. हाँ, गवर्नमेंट ग्रांट्स. ये 2 AS हो गया था. और कहीं पे भी आपको सोर्स मिलेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर, वो सम्स भी प्रैक्टिस करने के लिए कोशिश कीजिए. जैसे कि ICA चैप्टर, ICA स्टडी मटेरियल में भी मिल जाएगा ये जो स्टैंडर्ड्स है, उसमें कुछ एडिशनल सम्स है तो कर लीजिए, बेनिफिट होगा. ठीक है, एग्ज़ाम में उधर से भी दे सकते हैं मॉडल, समझ गया? क्योंकि इधर आपकी बुक में तो बहुत कम क्वेश्चंस दिया था, इधर जो भी है मैं कवर कर लेता हूँ, लेकिन जो एडिशनल है आप उधर करने से अच्छा लगेगा. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. वी आर लेफ्ट विथ 4 मोर. आई कंटिन्यू साइमल्टेनियसली अलॉन्ग विथ पार्टनरशिप. जिस दिन 2 घंटे का क्लास मिलेगा, मैं 1 घंटा पार्टनरशिप लूँगा, 1 घंटा एक स्टैंडर्ड कवर कर लूँगा. अभी एक स्टैंडर्ड हो गया, आई एम जंपिंग बैक इनटू पार्टनरशिप अकाउंटिंग. कम टू पेज नंबर क्या था नीलव? पेज नंबर 269.
Page number 269. Come fast. Bikash Devnath, are you there? Yes, sir. Yeah. You have joined in the middle, na? I have completed AS12. Try to see the video later on. You will understand. Now I am starting this partnership. So these Okay. are all the various concepts in partnership. See the index. Partnership accounting. Partnership. In this chapter we have seen sole proprietorship. Chapter 3. In the chapter 3 we have seen sole proprietorship, financial statements of commercial organizations. Yes or no? In chapter 3, financial statements of commercial organizations, financial statements of non-commercial organizations, but that is from proprietorship angle. This is partnership. Okay, that proprietorship in the sense only one owner. Here more than two owners. I mean two or more than two. Okay. These are all the various concepts. I'll come to this concept later on. But let us see what is this partnership is all about. See here the chat. Partnership. What are all the different features? Business carried on by all or any one of them acting for all. कोई एक बंदा मतलब कोई एक पार्टनर बाकी लोग के लिए भी काम कर सकता है या पूरा लोग मिलके काम कर सकते हैं. ठीक है, बट यू शुड हैव मिनिमम 2 members in the partnership. Next, unlimited liability of the partnership. Unlimited liability. In case of sole proprietor also, unlimited liability because he is the sole owner. In case of partners also, this is unlimited liability. Every partner is solely responsible for the liabilities of the partnership. Unlimited liability. Okay. Next, association of 2 or more persons. You should have at least 2 persons in partnership. Sharing of profit or loss of the businesses. You will have a separate partnership deed. You can say partnership deed is the Bible, Quran, Ramayana of this partnership. Okay. So there you will list out all the conditions, all the agreements, I mean all the terms agreed upon. There you will list in the partnership deed. On that deed, if the profit sharing ratio is 1:1:1, you have to share the profits in that ratio. There you have mentioned 2:2:3, whatever it may be. As per partnership deed, you have to share the profits and loss. Existence of a business, you have to carry on a business. An agreement entered into by all persons concerned. Partnership is an agreement entered into by all the partners. Clear? These are all the features. As per section 4 of the Partnership Act 1932, we have a separate act, Partnership Act 1932. As per section 4 of that act, partnership is a relation between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. कोई एक पार्टनर बाकी लोग के लिए काम कर सकते हैं या पूरे लोग मिलके भी काम कर सकते हैं. ठीक है. नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम 2, मैक्सिमम 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट. नो एसोसिएशन ऑफ पार्टनरशिप कंसिस्ट मोर देन 100 पर्सन्स. अगर मोर देन 100 होगा वो पार्टनरशिप नहीं होगा, कंपनी बन जाएगा. ठीक है. तो इसलिए मोर देन 100 नहीं होना चाहिए बोला है. लेकिन रूल 10 ऑफ कंपनीज रूल्स बोला है, एक और है. ये दोनों मिलके स्टडी करना पड़ेगा. कंपनीज एक्ट 100 बोल रहा है लेकिन रूल 10 बोल रहा है कि 50 ही होना चाहिए. तो इनडायरेक्टली अल्टीमेटली 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो मिनिमम 2, मैक्सिमम 50. अंडरस्टूड. मिनिमम पार्टनर्स कितना हो सकता है? मिनिमम पार्टनर सॉरी कितना होना है? 2. मैक्सिमम कितना हो सकता है? 50. ठीक है. अकाउंट्स क्या होगा? अकाउंट्स ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, P&L अप्रोप्रिएशन,
capital accounts. These are the financial statements in case of a partnership firm. इसको नोट डाउन करो. मिनिमम 2 पार्टनर्स, मैक्सिमम 50. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन केस ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म. ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, ये तो नॉर्मल सेम प्रोपराइटर जैसा है. एडिशनली एक होगा P&L अप्रोप्रिएशन, वेयर यू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स, वेयर यू चार्ज, आई मीन वेयर द फर्म चार्जेस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वेयर द फर्म पेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. Yes, and balance profit shared by the partners. Okay, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट आएगा वो P&L अप्रोप्रिएशन में जाएगा, उधर फिर अप्रोप्रिएशन होगा. उसके बाद जो प्रॉफिट है वो कैपिटल अकाउंट्स में जाएगा, कैपिटल अकाउंट से सीधा क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस शीट में आएगा. दिस इज द फ्लो. प्रोप्राइटरशिप में P&L अकाउंट में जो प्रॉफिट है सीधा कैपिटल में चले जाएगा, लेकिन P&L अप्रोप्रिएशन इधर एक एडिशनल स्टेप है, बिकॉज यू नीड टू appropriate the profit and distribute the final profit here. Understood? Rules in the absence of a partnership deed. This is also very important. अगर पार्टनरशिप डीड ये सब में साइलेंट है तब पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से ऐसा फॉलो होना चाहिए. समझ गया? अगर आप डीड लिखो उसमें लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन है ना इधर, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दिया, कितना इंटरेस्ट पे करना है पार्टनरशिप डीड में आप लोग एग्री नहीं किया है, ठीक है, यू हैव टू डेफिनेटली फॉलो दिस रूल ऑफ पार्टनरशिप एक्ट. 6% पे करना है. अगर आप लोग पार्टनरशिप डीड में एग्री किया 12% पे करना है, पार्टनरशिप डीड विल प्रिवेल ओवर दिस, बिकॉज दैट इज द बाइबल, that is the Quran, that is the Ramayana. Okay, but if your deed is silent on these points, you have to follow these points definitely. If your deed is silent, act will come into place. समझ गया? In the absence of any agreement to the contrary, no partner has a right to salary. किसी को सैलरी नहीं मिलेगा. सर सैलरी किसको देते हैं? वर्किंग पार्टनर होता है ना. सोच लीजिए पार्टनरशिप फर्म सेट किया है, एक ही पार्टनर वर्क काम कर रहा है, बिजनेस सभी पूरा एक ही पार्टनर देख रहा है, उसको प्रॉफिट के साथ एडिशनली कुछ सैलरी भी देना है, क्योंकि बाकी लोग तो सिंपली बेटर है, तो ये काम कर रहा है एडिशनली, कैपिटल भी कंट्रीब्यूट किया, एडिशनली काम भी कर रहा है, तो कैपिटल प्रॉफिट की एडिशनली उसको सैलरी भी मिल जाएगा. नेक्स्ट, नो इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल. डीड में साइलेंट है, आप लोग को नहीं मिलेगा कैपिटल में इंटरेस्ट. नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स. डीड भी साइलेंट है, फर्म भी आपके ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा. लोन पे 6% होगा. ठीक है, पार्टनर कोई है उसके पास ज़्यादा पैसा है तो लोन दे दिया, कैपिटल नहीं लोन है ये. समझ गए? कैपिटल हो तो फिर वो अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगा. लोन है तो कंपल्सरी पे करना है. ठीक है. प्रॉफिट और लॉसेस टू बी शेयर्ड इक्वली. पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इक्वली शेयर करना पड़ेगा. नहीं है तो आप लोग लिख दीजिए. अगर इक्वली शेयर नहीं करना है तो डीड में लिखो कितना परसेंटेज चाहिए लिखो. आप लोग लिखा नहीं तब तो मेरे हिसाब से फॉलो हो जाओ. ठीक है. दिस इज हु इज टेलिंग दिस? एक्ट इज टेलिंग दिस. ओके. इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट द इंटरेस्ट ऑन सैलरी पेड विल बी पेड ओनली इफ देयर इज ए प्रॉफिट. इसको इग्नोर करो, ये इधर तक मेन पॉइंट्स है. ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे. अभी इसको मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ, देख लीजिए. एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल, अभी ये भी पार्टनर्स है फर्म में, नया पार्टनर सी को इंट्रोड्यूस कर रहा है. दिस इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ द पार्टनर.
एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के समय पे क्या क्या एडजस्टमेंट्स होगा, ठीक है, वो सब देखना पड़ेगा। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, ए बी सी पार्टनरशिप फर्म्स है, इसमें ए बी सी पार्टनर्स है, इसमें से बी रिटायर हो रहा है। रिटायर मतलब बी डिसाइडेड नॉट टू कंटिन्यू इन द पार्टनरशिप फर्म, so he decided to leave the partnership firm. This is called retirement of a partner. रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर जब हो रहा है क्या क्या एडजस्टमेंट्स होगा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ए बी सी है, डेथ सी डेड है, मतलब सी गुजर गया, तो उस केस में क्या क्या होगा एडजस्टमेंट्स वो हम देख लेंगे। सर ये भी पार्टनरशिप फर्म है, बी गुजर गया, ये कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि मिनिमम तो 2 चाहिए, है कि नहीं, तो इसलिए ये भी सी है, नहीं है तो ये भी है, बी रिटायर हो रहा है, ये कंटिन्यू नहीं कर सकता है। तो जहाँ पे इसको ये सबको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब कुछ हुआ है पार्टनरशिप फर्म में, इधर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ जो भी हुआ है, इसके कारण पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, समझ गया। उसी टाइम पे एडजस्टमेंट्स क्या क्या होगा, वो सब अकाउंटिंग कैसे करना है, ये सब हम डिस्कस करेंगे, समझ गया। रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद मिनिमम 2 पर्सन्स होना चाहिए तभी पार्टनरशिप कंटिन्यू होगा। अगर एक बंदा है तब वो सोल प्रोप्राइटर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। पार्टनरशिप क्या था, पार्टनर्स के ऊपर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, समझ गया। पार्टनर्स के ऊपर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ले सकता है। सर क्यों लेते हैं, पार्टनरशिप फर्म तो हमें जब पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा, पार्टनरशिप फर्म इज लाइबल टू रीपे द कैपिटल अमाउंट टू द पार्टनर्स एज पर सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, यस और नो। सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट और सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, व्हाट इट सेज, बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम द ओनर्स, सो ओनर्स डिफरेंट है, बिजनेस डिफरेंट है। तो जब पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा, पार्टनरशिप फर्म इज लाइबल टू पे टू द पार्टनर्स, रीपे बैक टू द पार्टनर्स। सो पेमेंट अचानक करने के लिए पार्टनरशिप के पास पैसा नहीं होगा, नहीं हो सकता है, सो इसलिए जॉइंट लाइफ पॉलिसी लेता है, ठीक है। जबकि लाइफ पॉलिसी मतलब मेच्योरिटी डेट में कुछ अमाउंट आएगा। दूसरा, एक पार्टनर डेड हो गया या एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसी टाइम पे भी कुछ पेमेंट रीपेमेंट करना पड़ेगा ना। ये पार्टनर चले जा रहा है, बी पार्टनर या सी पार्टनर डेड हो गया, उसको जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स है उसको हम पैसा पे करना पड़ेगा। अचानक का पार्टनरशिप फर्म में पैसा कहाँ से आ गया, क्योंकि बिजनेस मतलब ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया होगा कहीं पे, एसेट्स में, स्टॉक में, कहीं पे, अचानक पैसे कैसे आएगा। तो इसलिए पार्टनरशिप फर्म हमेशा जॉइंट लाइफ पॉलिसी लेता है, समझ गया, जॉइंट लाइफ पॉलिसी लेता है। क्लियर टिल नाउ नीलव? यस सर। हाँ ठीक है। दिस इज 4th पॉइंट, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म्स। एबीसी पार्टनर से उन तीनों में झगड़ा हो गया, वो बोला पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं करेंगे, बंद कर देंगे, ठीक है, डिसोल्यूशन। अगर ये भी ठीक है, ये भी सोचा है कंटिन्यू करेगा, सी चले जाएगा, तब वो रिटायरमेंट बन जाएगा, डिसोल्यूशन नहीं होगा। तीनों पार्टनर्स मिलके पार्टनरशिप को बंद करना है, तब डिसोल्यूशन बन जाएगा। डिसोल्यूशन, पार्टनरशिप फर्म विल नो लॉन्गर एग्जिस्ट आफ्टर डिसोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट, एमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। एबीसी एक पार्टनरशिप फर्म है, XYZ एक पार्टनरशिप फर्म है, ये दोनों मिला के एक एबीसी XYZ एक पार्टनरशिप फर्म बनाना है, उसको बोलता है एमालगमेशन, ठीक है। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी। पार्टनरशिप फर्म के कंपनी में कन्वर्ट करना है, पार्टनरशिप फर्म कंपनी को सेल कर रहा है, ये दोनों डिफरेंट है। अकाउंटिंग ऑफ LLP, LLP मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप में मेन है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, बट दिस LLP इज ए डिफरेंट फॉर्म of partnership where partner is limited only to the capital contributed.
there you do not have unlimited liability. Clear with the introduction? Yes, sir. I'll take a pause. If you have any doubts, you can ask me in this partnership, I mean in the introduction part or in the slides which I have shown. If you have any doubts, you can raise. Here in any of the concept, if you have any doubt, you can ask me. I'll take a pause. सर जॉइंट लाइफ पॉलिसी एक बार एक्सप्लेन कर देंगे? हाँ, जॉइंट लाइफ पॉलिसी ना, मैं बताता Yes. हूँ क्लियरली. इधर देखो, जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होता है. जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ठीक है, हमारे पास बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, ABC पार्टनरशिप फर्म है, तो ABC पार्टनर्स है. As per business entity concept, partnership firm is different and partners are different. Yes or no? Yes, sir. हाँ. Now, whenever a reconstitution happens, example retirement है, death, dissolution, anything, ठीक है. This is called reconstitution. These are 3 events I am telling. Example retirement है, एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, एग्जाम्पल ये, ठीक है. ABC पार्टनरशिप फर्म में मेन कंट्रीब्यूशन ये ने किया था, एग्जाम्पल कैपिटल बहुत ज़्यादा इसका ही है, तो ये रिटायर हो रहा है. एग्जाम्पल ये 1 करोड़ का कैपिटल है इसका, ये बंदा रिटायर होके जा रहा है, मतलब he is not interested to continue in the firm, so A will go, B and C will continue the partnership. Now when A is going out of the firm, ABC firm has to pay closing capital balance to A. Yes or no? Yes, sir. हाँ. Now when A will go out of the firm, this is uncertain. Yes or no? Because till today we are fine with the partnership terms, everything are fine. Suddenly tomorrow A might come up and he may say to the B and C that I am going to leave the firm, because this is uncertain. It can happen on any particular day. Yes or no? Yes, sir. हाँ. सो अचानक जब आके ये बंदा बोलेगा मैं रिटायर होके चले जाऊंगा, 1 करोड़ बिजनेस के पास कैश रहना चाहिए. यस और नो, टू रीपे दैट पार्टनर. हाँ सर. तो 1 करोड़ जैसा लमसम अमाउंट कोई भी फर्म ऐसा आइडियल कैश नहीं रहेगा, नहीं रखेगा, बिकॉज फंड मैनेजमेंट होना चाहिए. 1 करोड़ आइडियल रखेगा तो कहीं पे इन्वेस्ट करो, आपको रिटर्न आ जाएगा. इसलिए कोई भी 1 करोड़ कैश नहीं रहेगा ऑन दैट पर्टिकुलर डेट. दैट इज नॉट पॉसिबल. यू कैन से दैट सर 1 करोड़ आपने कहीं जहाँ पे इन्वेस्ट किया उधर से लेके आके पेमेंट करो. You can do that, but instead of doing that, they will take one policy which is called joint life policy, insurance policy. Instead of some other investment, they are going to invest in joint life policy. Understood? हाँ सर. हाँ. What happens to this joint life policy? They'll contribute yearly premiums to that. Say for example, LIC में कुछ policy लिया था, तो per annum कुछ insurance payment करेगा. समझ गया? हाँ सर. हाँ. इंश्योरेंस पेमेंट करते करते हर साल जाएगा. सोच लीजिए 10 साल का ले लो, 10 साल का इंश्योरेंस है, पॉलिसी है, तो 5 साल हो गया. 5 साल के बाद ये रिटायर हो रहा है, तो ये रिटायर होने से क्या होगा, ABC फर्म इनडायरेक्टली LIC के पास जाएगा, बोलेगा मेरा जो पॉलिसी है
सरेंडर कर रहा हूँ, मुझे अमाउंट दे दो, क्योंकि रिटायरमेंट पहले कर रहा है, रिटायरमेंट के समय सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो पूरा मेच्योरिटी अमाउंट नहीं आएगा। लाइफ पॉलिसी में इनडायरेक्टली क्या होता है, जब बंदा मर जाएगा तभी पूरा अमाउंट आएगा, है कि नहीं? लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा ही होगा ना, है हाँ कि नहीं? सर। हाँ, लेकिन डेथ नहीं हुआ, रिटायरमेंट हो रहा है। रिटायरमेंट मतलब क्या, इनडायरेक्टली तुम जाके पॉलिसी को सरेंडर करना है, तो सरेंडर करने से सरेंडर वैल्यू दे देगा आपको, वो सरेंडर वैल्यू ये को पेमेंट करो, हो जाएगा। सर जैसे दूसरा उनका LIC पॉलिसी हो गया, इस सब का जैसे मैच्योरिटी पीरियड होता है, तो इसका भी होता है क्या सर? LIC का मेच्योरिटी पीरियड 10 साल, मैंने बोला है ना, पॉलिसी का 10 साल लिया। जनरली पॉलिसी का मेच्योरिटी अमाउंट कब आएगा, 10 साल का मैंने पॉलिसी लिया है, तो 10 साल के पहले अगर कोई भी मर जाएगा, पूरा पॉलिसी अमाउंट आ जाएगा। सोच लीजिए 3 साल के बाद मर गया तो पॉलिसी अमाउंट आ जाएगा। कोई भी पार्टनर मर जाने से आ जाएगा, 3 पार्टनर मर जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक पार्टनर, क्योंकि दिस इज जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ठीक है। 5 साल के बाद कोई भी, मतलब कोई गुजर गया, मतलब कोई मर गया नहीं, तब उस केस में पॉलिसी अमाउंट आपका आएगा नहीं ना, सरेंडर वैल्यू आएगा। मेच्योरिटी अमाउंट कब आएगा, 10 साल के बाद ही आएगा, 10 साल या डेथ ऑफ ए पार्टनर, विच एवर इज अर्लियर। अंडरस्टूड? हाँ सर। अंडरस्टूड ना नीलम? यस सर, यस। हाँ, ओके, नेक्स्ट। हाँ हाँ, नया पॉलिसी बनाना पड़े, क्योंकि ये पॉलिसी सरेंडर हो जाएगा, फिर नेक्स्ट जो नेक्स्ट साल में BC कंटिन्यू करेगा, तब नया पॉलिसी शुरू करेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो सरेंडर हो गया, सरेंडर हो गया, पॉलिसी सरेंडर हो गया, अमाउंट आ गया, इसको रीपेमेंट कर दिया। दिस इज वन ऑफ द मेथड। सर नहीं है, मैं कहीं कहीं पे गोल्ड में इन्वेस्ट करता हूँ, FD में इन्वेस्ट करता हूँ, जब भी ये बंदा रिटायर हो रहा है, डेथ हो रहा है, मैं जाके FD को मेच्योर करके पैसा ले लेता हूँ। यू कैन ऑल्सो डू दैट। दिस इज वन ऑफ द मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट इनडायरेक्टली, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अंडरस्टूड? क्लियर? हाँ सर। हाँ, let us do small sums here in admission of a partner. Come to page number 278. Question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो तो। सर मैं, नहीं, इधर पढ़ेगा, तुम पढ़ो। ओके सर। XYZ आर पार्टनर्स, ओके। इसका रेशियो क्या था, 3:2:1, ओके। W इज एडमिटेड, मतलब ये एडमिशन है, ठीक है, तो मतलब पार्टनरशिप फर्म में W को एडमिट कर रहा है, ठीक है। एडमिट करने के बाद टोटल कितना पार्टनर्स होगा, 4 पार्टनर्स होगा, XYZW, ओके, वेरी गुड। 1/16 ने प्रिंटिंग मिस्टेक है, 1/6 कर लो उसको, 1/6 है। W is admitted for 1/6 share in future profits. Okay. Next. Z would retain his original share. What is Z's original share? Can you tell me here? 1 out of how much? 6. टोटल करो इसको, इधर देखो, टोटल करो, 3, 2, 5, 6 है, 6 में से 1 पोर्शन है, मतलब 1/6 है, Z का पोर्शन है 1/6। क्या बोल रहे, Z वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, इसका मतलब है W एडमिट करने के बाद भी उसका शेयर 1/6 ही होना चाहिए फ्यूचर फॉर्म में। एडमिट करने के पहले भी 1/6 है,
करने के बाद भी 160 ही होना चाहिए, इसका मतलब समझ गया। नेक्स्ट, फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ, सिंपल मैथमेटिक्स है। हाँ, रेशियोज निकालना है। ठीक है, अभी ये 1/6 इधर हो गया, जेड 1/6 ही रहेगा, तो जेड आफ्टर एडमिशन भी इसका कितना रहेगा, 1/6 ही रहेगा। ठीक है, तो मतलब 1/6 जेड का है, तो ये जो वाई डब्ल्यू एडमिट कर रहा है 1/6 के लिए, इनडायरेक्टली ये 1/6 तो जेड कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, समझ गया। जेड का तो सेम शेयर है, तो जेड कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो एक्स एंड वाई बांटना पड़ेगा 1/6 को। मतलब एक्स एंड वाई उन लोग के पॉकेट से कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, किसके लिए, डब्ल्यू के लिए, बिकॉज डब्ल्यू इज द न्यू एडमिटेड पार्टनर। तो डब्ल्यू एडमिट हो रहा है, जेड बोला है मैं कुछ शेयर नहीं करूंगा, मतलब मैं कुछ सैक्रिफाइस नहीं करूंगा, बिकॉज वेन एवर ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, समझ गया। सोच लीजिए एक्स वाई पार्टनरशिप पार्टनर्स है, ठीक है। 120 रुपीज प्रॉफिट, मतलब उसका रेशियो है 1:1। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इधर देखो क्लियरली। एक्स एंड वाई पार्टनर्स है, उसका रेशियो है 1:1। सपोज प्रॉफिट आया था 120 रुपीज, एक्स कितना शेयर करेगा, 60 रुपीज, वाई कितना शेयर करेगा 60 रुपीज। क्लियर है। अभी जेड एडमिट कर रहा है पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है, जेड आ रहा है, तो एक्स वाई जेड, इसका रेशियो हो गया 1:1, समझ गया। तो अभी 120 रुपीज अगर प्रॉफिट आएगा, एक्स कितना शेयर करेगा, 40 40 40, समझ गए। तो पहले एक्स को अगर 120 प्रॉफिट आ रहा है फर्म में, तो एक्स को आ रहा है 60 रुपीज, लेकिन जेड एडमिट होने के बाद उसको आ रहा है 40 रुपीज, समझ गया। तो इनडायरेक्टली वो सैक्रिफाइस कितना किया था, 20 रुपीज, है कि नहीं। वाई को आ रहा है पहले बिफोर एडमिशन 60 रुपीज, आफ्टर एडमिशन 40 रुपीज आ रहा है, इनडायरेक्टली ये भी 20 रुपीज सैक्रिफाइस कर रहा है। ये दोनों 20-20 सैक्रिफाइस करके जेड ले रहा है 40 रुपीज, समझ गया। तो इनडायरेक्टली 40 रुपीज is sacrificed by x and y in the ratio 1:1. So 1:1 is the sacrificing ratio, समझ गया। This is the new ratio, this is the old ratio. Understood? Understood? This part understood? Clear, Nilav? Clear with this part, Nilav? Yes, sir. Now in this case, see. एक्स का न्यू रेशियो क्या होगा, 3/6 उसका ओल्ड रेशियो है, ठीक है। एक्स का ओल्ड रेशियो 3/6 है, न्यू रेशियो क्या होगा, 3/6 से कितना सैक्रिफाइस कर रहा है उसको निकालना पड़ेगा। कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, वाई का डब्ल्यू को कितना दे रहा है, 1/6 ना, 1/6 को ये लोग 3:2 में बांटना है, समझ गया। 3:2 मतलब इनडायरेक्टली इंटू 3/5, इतना माइनस करेगा तो इसका नया पोर्शन आ जाएगा। न्यू पोर्शन कितना है एक्स का, देखो सिमिलरली वाई का न्यू रेशियो देखो, 2/6 इसका ओल्ड रेशियो है, माइनस अभी 1/6 डब्ल्यू को देना है, 1/6 में से वाई कितना बेयर करेगा, 2/5 बेयर करेगा,
y का न्यू रेशियो कितना है बोलो? कितना है देखो, 3/6 माइनस 2 करो इधर, तो 10 होगा, 1/5 2 ज़ा 10 होगा, ठीक है। तो नीचे 60 कर लो, 30 माइनस 6 24/60, मैं 60 में लिया था, ठीक है। नेक्स्ट इधर 2/6 माइनस 3, ठीक है ना, 15 होगा, 1/15, ठीक है। 6 इंटू 15 तो 30 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 6, 15 कितना था, 90, 24/90, ठीक है। अभी y का w का तो इतना है 1/6, इधर तो इतना है 1/6, इसको अभी 60 में लाने से बेटर है, तो 60 में लाना है तो 2 टेबल 12 2 टेबल 45, कितना आ रहा है, फिर 3 टेबल, 3 4 ज़र 3 1 ज़र 3, 4/15 ना, ठीक है। ये तो 4/15 हो गया, ये 3 8 ज़र 3 20 ज़र, ये तो 8/20 हो गया, हाँ। इधर कितना था, 2 टेबल 4 या 4 टेबल 2, 2/5 आया क्या, मतलब 6/15 होगा ना, इंटू 3, 6/15, इधर 6/15, इधर 4/15, ठीक है। सिक्स बाई 15 एक्स का 6/15, 4/15, 1/6, 1/6, यही होगा, है कि नहीं। डिवाइड बाई 2 करो, 30 हो जाएगा, इधर 12 डिवाइडेड बाई 30, 2 करने से 8 डिवाइड बाई 30, इधर 30 होना तो 5 करना है, 5 डिवाइड बाई 30, 5 डिवाइड बाई 30, ठीक है। अभी 12:8:5:5, क्लियर। न्यूमरेटर मतलब डिनोमिनेटर इक्वल करना है, तो 15 और 6 का इक्वल करने के लिए इधर मैं 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये 30 बन जाएगा। इधर 6 के लिए तो 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो इंटू 5/5 इंटू 5/5, इधर इंटू 2/2 इंटू 2/2, तब 1230, 2 करने से 830 होगा, इधर 5 करने से 5/30 होगा, नीचे सब 30 हो गया, तो रेशियो में ले लिया, क्लियर ना।
Clear with the sum? This portion is called sacrificing ratio. ठीक है, मतलब इस पोर्शन का वन बाई सिक्स इंटू 3/5, मतलब ये इनडायरेक्टली 3:2 होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो. समझ गया? 3:2 इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो. सर क्यों? 3 पार्टनर्स है ना, 3 पार्टनर सैक्रिफाइस करना है ना, लेकिन इस केस में क्लियरली बोला है जेड सैक्रिफाइस नहीं करेगा. ठीक है, क्लियरली क्वेश्चन में लिखा है कि जेड विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, मतलब जो एडमिशन के पहले जितना शेयर है एडमिशन के बाद भी उतना शेयर उसका कंटिन्यू होना चाहिए. दैट्स व्हाई जेड इज नॉट गोइंग टू सैक्रिफाइस एनीथिंग, सो ओनली एक्स एंड वाई विल सैक्रिफाइस. X and Y will sacrifice 1/6 of the portion, I mean 1/6 share of the profits in 3:2 ratio. That's why 1/6 into 3/5, 1/6 into 2/5. So this is the sacrificing part. Clear? Question number 1 homework में ले लीजिए. AB are currently partners in a partnership firm sharing profit and loss in the ratio 4:3. New partner C is admitted, and after his admission new profit sharing ratio becomes 5:3:2. What will be the sacrificing ratio of A and B? क्वेश्चन नंबर 1 में sacrificing ratio कितना था वो फाइंड आउट करना है. ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. क्योंकि हमेशा ओल्ड रेशियो ज़्यादा होता है, एडमिशन के पहले उसको 60 रुपीज़ मिल रहा है. क्यों? क्योंकि 2 ही पार्टनर है, उसका शेयर ज़्यादा होगा, तो इसलिए ओल्ड रेशियो हमेशा ज़्यादा होगा. तो इसलिए ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है. सो फर्स्ट क्वेश्चन होमवर्क में ले लीजिए, थर्ड क्वेश्चन भी होमवर्क में ले लीजिए. ओल्ड पार्टनरशिप रेशियो, ओल्ड रेशियो दिया था. ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताया था, आपको न्यू रेशियो फाइंड आउट करना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी होमवर्क में ले लीजिए. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 होमवर्क में ले लीजिए. क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बताया था, क्वेश्चन नंबर 4 मैं कल कंटिन्यू करूंगा. एनी डाउट्स टिल नाउ? If you have any doubts, you can ask me in today's class. जो सब बुक्स में है एटलीस्ट वो तो प्रैक्टिस कीजिए, मॉडल तो समझ में, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाएगा. ठीक है, इस नॉलेज से जो भी सम देगा कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा. क्वेश्चन जो भी सम कर रहा है उस सम याद नहीं रखना है, कॉन्सेप्ट याद रखना है. क्यों इधर ये कर रहा है, क्यों माइनस कर रहा है, क्यों डेबिट कर रहा है, क्यों क्रेडिट कर रहा है. जो मेनली जो जर्नल एंट्रीज फॉर्म हो जाएगा तो मिनिमम तो ये अकाउंटिंग, लेजर अकाउंटिंग इजी है तो लेजर में पोस्टिंग इजी है, लेजर पोस्टिंग इजी है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इजी है. समझ गए? डेबिट क्रेडिट इम्पैक्ट कहाँ आएगा वो मेन है. स्टेटमेंट इन द सेंस, हाँ 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 हाँ, ओके. जहाँ पे क्रेडिटर और डेटर है तो वही उसी अकाउंट को ही क्रेडिट करना पड़ेगा.
नेचर एग्जाम्पल मैंने जो पहले एस 12 में बताया था, क्रेडिट में आप लोग ये डिफर्ड इनकम भी ले सकते हैं या P&L भी ले सकते हैं। ऐसे जहाँ पे सर्टेनिटी है तब उधर 2-3 ले सकते हैं अकाउंट्स। तो एग्जाम्पल कैश अकाउंट डेबिट कर सकता हूँ या बैंक अकाउंट डेबिट कर सकता हूँ। क्वेश्चन में अनसर्टेनिटी है, कैश में आया था या बैंक में आया था, मैं बैंक में ले रहा हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट ऐसा ले रहा हूँ या कैश अकाउंट स्लैश बैंक अकाउंट ले रहा हूँ। जो फैक्ट्स है क्वेश्चन में उसके हिसाब से ही लेना पड़ेगा। अकाउंट तो गलती करेगा तो फिर लेजर अकाउंट पूरा मतलब वो अकाउंट ही गलती हो जाएगा। ठीक है, एक से एक्सपेंस की जगह में दूसरा एक्सपेंस डेबिट कर रहा है, आपका P&L अकाउंट इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर नेचर गलत हो जाएगा तब गलती हो जाएगा। एग्जाम्पल, एक सैलरी के एक्सपेंस की जगह में आप लोग वेजेस कुछ लिख दिया है, ऐसा कुछ सिमिलर नेचर है, तो P&L अकाउंट को भी डेबिट करो, सैलरीज डेबिट करो, वेजेस डेबिट करो, फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, टर्म को ऐसा अगर इम्पैक्ट सेम है तो फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बेटर है जो है एंट्री, जो एक्सपेंस है अगर स्पेसिफिकली दिया है उसको डेबिट उसको क्रेडिट करना है। ठीक है, नरेशन स्टेटमेंट कैसे स्टार्ट करेगा, वर्किंग नोट पहले देगा बाद में देगा, ये आपकी मर्जी है, लेकिन तो प्रेजेंटेशन ठीक होना चाहिए। उन लोग को सभी स्टेप वाइज मार्किंग है, इसलिए हमेशा स्टेप क्लियरली सब वर्किंग नोट्स के साथ आंसर सब क्लियरली होना चाहिए। ठीक है, अकाउंटिंग पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, क्यों डेबिट क्यों क्रेडिट, तब रेस्ट ऑफ द प्रोसेस इज इजी। क्लियर? नीलव, विकास, एनी डाउट्स? नहीं सर, ओके सर। Yeah. So I'm closing the class for today. Okay, thank you. ओके।